हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था लास्ट सेशन में कि जो भी हमने थ्योरी में या बोर्ड पे पढ़ा है उसे मैं मैप में शो करूँगी आपको। तो जो भी हमने पढ़ा था वो सबसे पहले हमने पढ़ा था इंडिया की लोकेशन। इंडिया की लोकेशन वर्ल्ड पे मिल पाएगी। उसके बाद हम उसी लोकेशन के पार्ट में हमने ये इसका लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन से लोकेशंस को समझा था। देखिए, जो चीज़ पढ़ी थी वो ये था कि जो लैटिट्यूडनल ये जो लाइंस हैं ये सब लैटिट्यूडनल लाइंस हैं दीज आर द लैटरल लाइंस। तो जो एक्सटेंशन है वो 8 डिग्री 4 मिनट, दिस इज़ नॉर्थ, एंड विच एक्सटेंड्स टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. This is the latitudinal extension. Now, as you can see, this is the longitudinal. These are the longitudinal lines. ये difference है. As you can see, 68 degree 7 minute east. To move this part, it is 97 degree 25 minute east. This is the longitudinal. ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले वाले वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है. इसमें सिर्फ अपन मैप में इसको देख करके लोकेट करने की कोशिश करेंगे. द नेक्स्ट टॉपिक इन इंडियाज़ लोकेशन, Tropic of Cancer. Now I will show where the Tropic of Cancer lies and how it divides India into two equal parts. Tropic of Cancer is at 23 degree 30 minute north. Here we can see this line is Tropic of Cancer. It is at 23 degree 30 minutes and it is dividing the whole country India into two equal parts. This is the third point in India's location, and the fourth point is regarding the two island groups of India. Two island groups of India. One is Lakshadweep Island, which lies in southwest side in Arabian Sea, and the second group of island is Andaman and Nicobar Island. These two island groups, this particular Andaman and Nicobar Island lies in Bay of Bengal, which is in southeast. So one is in southwest, another is in southeast. As you can see, this is Bay of Bengal, and here lies Andaman and Nicobar Island, and in the southwest we have Lakshadweep Island. नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया साइज़. इंडिया के अगर साइज़ की हम बात करते हैं तो जो सबसे पहला पॉइंट इस पर दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि जो टोटल लैंड मास है इंडिया का, जो सी द टोटल लैंड मास ऑफ इंडिया इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. दिस इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और ये वर्ल्ड के टोटल जोग्राफिकल एरिया का 2.4% है. This if we talk or convert it into percentage, then total geographical area of the world, this is 2.4%. So India's total area account for about 2.4% of the total geographical area of the world. And the other thing is that we will now focus on the figure 1.2. In 1.2, the table actually shows that India is the 7th largest country of the world. India is the 7th largest country of the world. This is from the source of United Nations Demographic Yearbook 2015, in which you can see area-wise Russia stands first, and then Canada, USA, China, Brazil, Australia and India. First, second, third, fourth, fifth, sixth and seventh. India position is at 7th, as we have already read. 3.28 square million kilometer. 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इंडिया का. उसके अकॉर्डिंग इंडिया 7th पोजीशन पर है, और इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं क्योंकि ये जनरली पूछा जाता है पोजीशनिंग. तो रशिया, देन कनाडा, USA, चाइना,
ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया। रुको बाई के नाम से आप इस एक्रोनियम को दिमाग में रखते हुए इसको याद कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द about the land route. Now we can see here, you can see the land route. इंडिया का जो शेप है उसके अंदर जो इंडिया की बाउंड्री की अगर हम बात करते हैं तो ये जो लैंड बाउंड्री है इंडिया की, ये जो लैंड बाउंड्री है, दिस वन, दिस इज़ द लैंड बाउंड्री। ये जितनी भी लैंड बाउंड्री ये दिख रही है, ये टोटल कितना है लैंड बाउंड्री? 15,200 किलोमीटर। और क्योंकि इंडिया का डेक्कन पेनिनसुला, ये जो शेप है पेनिनसुला इज़ अ शेप और अ लैंड मास विच इज़ एक्चुअली कवर्ड by water from three sides. So India, this particular shape is called peninsula because it is covered by water from the three sides. First is Arabian, West, Bay of Bengal in the east, and Indian Ocean at the bottom. So this is the peninsular shape. So obviously India is having the coastal line also. तो कोस्टल लाइन अगर हम मेन लैंड और ये लक्षद्वीप आइलैंड्स की ये वाली जो कोस्टल लाइन्स हैं और अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप की ये जो कोस्ट लाइन्स हैं, ये टोटल मिलाकर के 7,516.6 किलोमीटर है। गॉट इट? जो लैंड बाउंड्री है विच आई हैव ऑलरेडी शोन इट टू यू इज़ एक्चुअली 15,200 किलोमीटर। एंड वी टॉक अबाउट द कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग दिस अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड, it accounts for 7,516.6 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, जब हमने कोस्ट लाइन की बात कर ली, उसके बाद है इंडिया इज़ बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। तो हेयर वी कैन सी इंडिया नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। इंडिया इज़ एक्चुअली बाउंडेड बाय द माउंटेन्स। ये जो माउंटेन वाला डिटेलिंग है ये चैप्टर सेकंड का पार्ट है, तो इसे हम और आगे डिटेल में चैप्टर सेकंड में पढ़ेंगे। माउंटेन रेंज के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से नेम है माउंटेन रेंज के। यहाँ पे हमको ये बताया हुआ है कि इंडिया इज़ बाउंडेड बाय माउंटेन्स, यंग फोल्ड माउंटेन्स at north, northwest and northeast. And the next topic is south of about 22° north latitude. It begins to taper and extend towards the Indian Ocean, dividing it into two seas, the Arabian Sea on the west and Bay of Bengal on its east. It is very easy again when we can see the shape 22° latitudinal अगर हम देखें ये वाला, ठीक है, दिस इज़ द 22। तो यहाँ से ये टैपर कर रहा है इंडिया और इंडियन ओशन को ये दो में डिवाइड कर देता है, एक अरेबियन सी और एक बे ऑफ बंगाल। दिस पॉइंट इज़ वेरी क्लियर। नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट in figure, or we have already seen the longitudinal and latitudinal. They are saying that look at the figure, we have already seen it. Latitudinal and जो longitudinal extent है mainland का, इनका जो टोटल एक्सटेंट है वो 30° का है। गॉट इट? ये बात और है कि जो हमारा ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है वो स्मॉलर दिखता है नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंट से। इसका मतलब 68°7' to 97°25'. This extension is called east west extension and this is called north west. Obviously this is looking smaller and this is looking larger, but the near about difference of both the latitudinal and longitudinal comes to about 30° each. Due to this 30° difference, when the sun rises in Arunachal Pradesh here, it takes 2 hours. This 30° difference accounts for 2 hours difference. When sun rises in Arunachal Pradesh, after 2 hours it will be rising in Gujarat. 2 hours का ये जो टाइम डिफरेंस है पूरी होल कंट्री इंडिया में, क्योंकि टाइम एक स्टैंडर्ड टाइम रहना चाहिए, इसलिए एक स्टैंडर्ड मेरिडियन के अलॉन्ग जो भी टाइम चल रहा है वो पूरी इंडिया में फॉलो अप होगा। और ये जो here it is written from Gujarat to Arunachal Pradesh there is a time lag of 2 hours. This time lag is because of this 30° difference extent. Hence time along the standard meridian of India at
82 degree 30 minutes is passing through Mirzapur in UP is taken as a standard time for the whole country. So you can see here, this is 82 degree 30 minutes east, and this standard meridian is passing through Mirzapur UP. Here this is actually Mirzapur. यूपी, यहाँ पे जो भी टाइम होगा वो टाइम पूरी इंडिया में एक स्टैंडर्ड टाइम माना जाएगा. सो देयर इज़ वन क्वेश्चन ऑल्सो in find out why 82 degree 30 minutes east has been selected as a standard meridian of India. So you can answer now this question. Next thing is the latitudinal extent. अभी हम longitudinal extent की बात कर रहे थे जो कि 30 डिग्री था. अभी latitudinal extent भी नियर अबाउट उतना ही है. वो किसको इन्फ्लुएंस करता है? वो डे और नाइट की ड्यूरेशंस को इन्फ्लुएंस करता है. जैसे ही कोई साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करता है तो ये जो ड्यूरेशन है डे एंड नाइट का वो चेंज हो जाता है. एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली वाई इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नॉट सो इन कश्मीर. तो इन द व्हेन वी विल डू द आंसर्स आई विल लेट यू नो द आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन.